ابھی اعلان کر رہے تھے صاحب کہ جھولے کی زیارت ہوگی. آج باب العلم میں بھی اور جگہوں پر بھی ایک تعداد ان لوگوں کی ضرور آتی ہے جو بے اولاد ہیں، اور جب حضرت علی اصغر کا جھولا دیکھتے ہیں تو زیارت شبیہ ہے گہوارہ علی اصغر، شبیہ ہے مہد علی اصغر. تو دور سے ہی چاہے ہاتھ لگانے کا اگر موقع نہ بھی ملے تو دور سے ہی دیکھ کر وہ نظر مانتے ہیں. باب الحوائج ہیں علی اصغر. ان کا واسطہ دے کے جب اللہ سے آپ بات کریں گے نا تو یقین جانیے کہ اللہ سنتا ہے، جلدی دعا قبول ہوتی ہے. وہ لوگ بھی بیٹھے ہوں گے جن کے بچے نہیں ہیں، وہ بھی مجلس میں آئے ہیں. جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ بھی مجلس میں آئے ہیں. جو اپنے بچوں کے لیے بچے چاہتے ہیں، یعنی پوتا چاہتے ہیں، پوتی چاہتے ہیں، نواسا نواسی چاہتے ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ آج کی مجلس میں دعائیں تو آپ کے ذہن میں بہت کچھ ہوں گی، اور ویسے بھی ہم یہاں صرف مانگنے ہی نہیں آئے، خود مولا کی توجہ ہم پر ہو جائے یہ بھی تو بہت بڑی حاجت ہے کہ کسی طرح مولا کی توجہ ہماری طرف ہو جائے. اور یقین جانیے آپ عام کسی بزرگ کے بچوں کی تعریف کریں، یعنی آپ آزمائیے گا نا، آپ کسی بزرگ کے سامنے ان کے پوتے کی تعریف کریں، آپ کسی کے سامنے ان کے بیٹے کی تعریف کریں تو وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے. وہ خوش ہو جاتا ہے کہ یہ میرے پوتے کی تعریف کر رہا ہے، یہ میرے بیٹے کی تعریف کر رہے ہیں. جب آپ امام حسین کا ذکر کرتے ہیں نا تو سب سے زیادہ جسے راضی کرتے ہیں وہ نبی مکرم ہے، وہ سرکار دو جہاں ہے، پھر جناب زہرا ہے، پھر مولا علی ہے. اور کتنے لوگوں کو ہم راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ اگر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے. یہ فرش اعظم معمولی جگہ نہیں ہے. مجلس میں جو خواتین بیٹھی ہیں میں ان سے کہوں گا کہ ذرا آج اپنی احتیاط میں اضافہ کیجیے گا. آج کی مجلسوں میں کیا معلوم جناب رباب بھی آ جائے. دیکھو فلاں جگہ کی مجلس میں میرے علی اصغر کو کیسے یاد کیا جا رہا ہے. اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے. سلام ہو اس بی بی پر جس کے پاس دو ہی تو کمائیاں تھیں، ایک علی اصغر ایک سکینہ. ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی آغوش میں دے دیا. میر انیس کہتے ہیں کہ بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. جیسے مجاہد میدان میں اترتا ہے نا تو آستینوں کو لوٹ کر اترتا ہے. جناب علی اصغر کو ایسے ہی تیار کیا جناب رباب نے، اور بال جھنڈولوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما لگایا، پیشانی کا بوسہ دیتے ہوئے سوکھے ہونٹوں کی طرف دیکھا. اور عجب نہیں کہا ہو کہ جنت میں اگر دادی پوچھے تمہاری ماں نے تمہارا منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں پیاسی تھی، مجھے پلانے کو ان کے پاس پانی نہیں تھا. اجرکم اللہ. کیا جگر ہے جناب رباب کا، کیا حوصلہ ہے اس بی بی کا. ادھر علی اصغر علیہ السلام کو بابا کی گود میں دے دیا، ادھر سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ دیا. آپ آمادہ ہو گئے رونے کے لیے؟ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کرے گا. جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہیں روئے گا. جسے رونا نہ آ رہا ہو وہ مولا سے آنسو مانگے گا.
मौला अगर 6 मुहर्रम को भी ना रोया तो कब रोऊंगा। मौला मेरे बराबर वाला तो बहुत अच्छा रो रहा था, मुझसे आगे बैठे हुए की तो आवाज बुलंद हो रही थी, मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। अज़ादारों, जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को बाहर लाना कितना मुश्किल था, कोई जनाबे ज़ैनब से पूछे। जब खेमे जल रहे थे ना, तो जनाबे ज़ैनब कुबरा इमाम सज्जाद को जलते हुए खेमे से बाहर लाई हैं। कितना मुश्किल था जनाबे ज़ैनब के लिए जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना। एक यजीदी लश्कर का सिपाही कहता है कि जब खेमे जल रहे थे तो मैंने दूर से देखा कि एक खातून है जो जलते हुए खेमे के अंदर जाना चाहती है और जलते हुए खेमे की चोप से टकराती है और फिर रास्ता बदल के दूसरी तरफ से जाती है, फिर खेमे की आग उसे रोक देती है। वो कहता है मैं ये समझा कि किसी ने खेमे लूटने वालों में से किसी ने इसके सर पे जरबत मारी है, जिसकी वजह से इसकी आंख का नूर चला गया है, इसे नजर नहीं आ रहा कि आगे आग जल रही है। तो कहता है कि मैं करीब आया और मैंने आके कहा कि तुम्हें नजर नहीं आता, ए खातून तुम्हें नजर नहीं आता, आगे आग जल रही है, तुम आग में जाना चाहती हो। तो वो बीबी मुड़कर देखती है और कहती है या शेख इन्ना लना फीहा अलीलुन, इस खेमे में हमारा एक बीमार रह गया है जो अपने पैरों से चलकर नहीं, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, आवाजें बुलंद है, अल्लाह को अजर अता फरमाए, जो अपने पैरों से चलकर नहीं आ सकता। और वो बीबी जलते हुए खेमे में गई, अपनी पुष्प पर अपना बीमार भतीजा उठाकर लाई। अब मैं रोने वालों से सवाल कर रहा हूं, कितना मुश्किल है जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को लाना। उससे ज्यादा मुश्किल था कब्र सकीना से बीबी रबाब को उठाना। अजरो कमल अल्लाह। जलते हुए खेमे से इमाम सज्जाद को कैसे लाई? जनाबे रबाब को कब्र सकीना से उठाते थे, बीबी फिर चली जाती थी, फिर उठा के लाते थे, बीबी फिर चली जाती थी। जब इमाम सज्जाद ने फरमाया ना अम्मा महमिल तैयार है, तो हुक्म इमाम पाकर कब्र तो छोड़ दी मगर मुड़ मुड़ कर सकीना को देखती रही। और जब महमिल में आके बैठी ना, तो महमिल का पर्दा हल्का सा हटाकर कब्र को देखती रही। जनाबे ज़ैनब समझ गई कि किसी भी लम्हे भाभी इस दुनिया से चली जाएंगी। तो मेरी बीबी ने शाम के देहात की औरतें जो रुखसत करने आई हुई थी उन्हें आवाज देकर कहा, ऐ शाम की औरतों मुझ पे एक एहसान करोगी? तो शाम की औरतों ने आवाज देकर कहा बीबी हुक्म करेंगी। तो इशारा करके कहा हमारी सकीना को अकेला ना छोड़ना, अल्लाह आपको शाम ले जाए जनाबे सकीना की ज़ियारत के लिए। अब जब आप जाए ना तो जाली से कब्र को जरूर देखिएगा। आज भी शाम के देहात की औरतें खिलौने लाके डालती हैं और एक नोहा पढ़ती हैं, तुम्हारी मां से वादा किया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से गिरिया करना। जनाबे रबाब क्या जिगर है। इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। रबाब ने वफादारी का हक अदा कर दिया। मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त मुझसे कह रहे थे कि बनारस इंडिया में उनके इमाम बारगाह से हर साल आशूर के दिन ताबूत जुलजना जरही ताजिए का जुलूस निकल के बनारस की करबला में जाके खत्म होता है। कहने लगे कि जुलूस निकला तो हम चंद दोस्तों ने तय किया कि जरा रूट पर चलते हैं जहां से जुलूस को जाना है, ताकि रास्ते के इंतजामात देख सकें कि क्या हुआ, क्या किया इंतजामिया ने। कहते हैं हम आगे जा रहे थे, जुलूस पीछे था, अचानक एक चौक के ऊपर हमें एक मंजर नजर आने लगा। आगे एक चौक आ रहा था, चौराहा आ रहा था, एक चौरंगी थी, उस पर हमने एक मंजर देखा और वो मंजर यह था कि हजारों की तादाद में हिंदू औरतें खड़ी हैं। कहने लगे करीब गए तो और मंजर एक सामने आया, वो ये कि हर एक की गोद में दूध पीता बच्चा है। कहने लगे जब हम बराबर से गुजरने लगे तो एक औरत की आवाज आई, भाई मुसलमान लगते हो? तो हमने कहा हाँ मुसलमान है। कहने लगे मुसलमान हो तो बताओ बाबा हुसैन का जुलूस कब आएगा? कहने लगे मैंने पूछा तुम्हें बाबा हुसैन के जुलूस का इंतजार क्यों है?
कहने लगे तुम्हें नहीं पता आज हुसैन का बच्चा भूखा मारा गया, आज हम अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते जब तक ताजिया दफना ना दिया जाए। अजरुकुम अल्लाह। अजरुकुम अल्लाह। बच्चे को लाकर इमाम हुसैन की गोद में दिया। सारे छोटे छोटे बच्चे भी हजरत अली असगर के साथ साथ बाहर आए। क्या कहा, ऐ मेरे वाली ये कुछ देर में मर जाएगा, इसको पानी पिलाकर ले आइए। हम मैं रोने वालों से, मजलिस में बच्चे भी आए हुए हैं, मैं एक रोने वालों से सवाल करूं, जो और प्यासे बच्चे थे ना, वो इस उम्मीद में अली असगर को रुखसत कर रहे थे कि अली असगर को जब पानी पिला लेंगे तो हुसैन हमें भी पानी पिलाने ले जाएंगे। क्या कैफियत थी जनाब अली असगर की। चंद साल पहले एक जवान मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना मैं मछली खरीद कर लाया, मैंने अपनी बड़ी बहन से कहा कि आपा मुझे मछली तल के दे दो, तो दादी तखत पे बैठी हुई थी, आवाज देकर कहने लगी बेटा मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने दादी से कहा दादी हलाल है, मोहम्मद तो कयामत तक हलाल है, तो मछली तो हलाल है, तो मछली मुहर्रम में क्यों नहीं खाते, अशरे में क्यों नहीं खाते। तो दादी कहने लगे हाँ तुम आज जवान, आज की जो नस्ल है वो हमारी बात नहीं मान रही, तुम जाके मौलाना से पूछ लो, मौलाना इजाजत दे तो खा लेना। अब वो जब ये दादी की बातें बता रहा था ना तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने रोते हुए उससे कहा, मैंने कहा मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, मुझे मसले का जवाब नहीं आता, तुम दादी की बात मान लो। मैंने कहा तुम दादी की बात मान लो, मुझे इस मसले का जवाब नहीं आता। कहने लगा मौलाना मैं समझा नहीं, मैं क्या करूं। मैंने कहा दादी की बात मान लो, मछली न खाओ, इसलिए कि इमाम हुसैन ने अली असगर के तड़पने को मछली के तड़पने से ताबीर। अमा तरौना कैफा यतलद्दा, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह तड़प रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं बाज लोगों के हाल गैर होते देख रहा हूं, बाज लोगों की हालत गैर हो रही है। मैं हजरत अली असगर का वास्ता देता हूं अल्लाह को, या अल्लाह ये तेरे बाबुल हवाइज के चाहने वाले, इन्हें सलामती अता फरमा। सोच सकते हैं इतना सा बच्चा 3 फलों वाला तीर। अजरुकुम अल्लाह। बच्चे ने एक मर्तबा तीर गले पर लिया, दूध की जगह खून उबलने लगा, इमाम ने चिल्लू में खून को लिया, आसमान को देखा तो आवाज आई कभी पानी नहीं बरसेगा, जमीन को देखा तो आवाज आई कभी फसलें नहीं उगेगी। मेरे मौला ने अपने चेहरे पे खून मल लिया, या अल्लाह इसी हालत में तेरी बारगाह में आऊंगा। गर्मी बड़ी शदीद थी, करबला में तपिश बहुत धूप की तेज थी। इमाम ने अबा का दामन लाशे पे डाल दिया, अब लाशा लेके चल रहे हैं। जैसे ही खेमे का दरवाजा करीब आया, हुसैन मौला पहली मर्तबा लाशें बड़े उठाए हुसैन ने, जिसने अली अकबर का लाशा उठा लिया हो, जिसने कासिम का लाशा उठा लिया हो, जिसने अब्बास के कटे हुए बाजू उठा लिया हो, उससे अली असगर का लाशा उठ नहीं रहा था। कभी आगे जाते हैं इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते रिजन में क़ज़ाए ही व तस्लीमन लिअम्रे, कभी आगे जाते कभी पीछे आते। खेमे से पर्दा हटा, सामने सकीना नजर आई। बीबी ने देखा कि भाई जो तड़प रहा था सो रहा है, जो अब से पहले भाई तड़प रहा था वो अब भाई बाबा की गोद में सो रहा है। तो बीबी ने आवाज देकर कहा बाबा मैं भी प्यासी हूं,
बाबा मुझे ले जाइए। हुसैन क्या बताए, कैसा पानी पिलाया। जब बच्ची की आवाज बुलंद हुई, खाने से फिर पर्दा हटा, बच्चे की मां नजर आई। इमाम ने जनाब रबाब को देखकर कहा, रबाब बताओ मैं कौन हूं। रबाब मैं कौन हूं? फरमाया आप मेरे इमाम है, आप हुज्जत खुदा है। इमाम ने अबा का दामन हटा दिया। एक मां ने खून में लथपथ बच्चा देखा, नन्हे नन्हे लबों पे लब रख दिए। या बुनैया अब मिसलों युनहर, अरब तो ऊँटनी के बच्चे को भी नहर नहीं करता, क्या तुझे ऐसा कर नहर किया जाता?